Hi guys, welcome back to my channel. This is me Prachi. In today's video, I'll be telling you how I got selected in Wipro without doing much efforts. I'll be telling you what are the questions that are asked in interview, what are the tips and tricks that I followed and got selected in Wipro. So first of all, what I'm doing. Currently I'm pursuing BCom Honours from University of Lucknow and I'm a third year student. And I have not yet passed and I have got a job. So what you can do to get job in big MNCs like Wipro, HCL and TCS and many other like Genpact and all. So there are various tips and tricks and various procedures that you must follow in order to get jobs and in order to make your resume get shortlisted. So I'll be telling you everything in detail in this video. So you have to stay tuned till last to know all the things, all the steps, all the tips and tricks and get job like me. First question that arises in your mind is how I applied. So it was an on-campus drive. So I applied through my placement cell. So it was for the customer support executive and my salary is 3.08 lakh per annum with incentives. Okay, plus incentive. What is the procedure of Wipro? So there are 4 steps. Everyone should follow. The first meeting is going to be held in the morning, generally in the morning, or I don't know the time. Mine was in the morning. Okay, there they will introduce you about the company, the job role, the roles and responsibilities, what are the perks, what is the salary, and what are the shifts, what are the working hours, everything, so that you are familiar with the job. It is very necessary because your attendance is marked there. Okay, and if you will not be knowing about the company, if you will not be knowing about the job profile, how you will gonna be answering about the interview questions, because the interview questions are framed around the job profile only. So you must know the roles and responsibilities. Okay, so you must join the first meeting. Okay, you have to fill the form, I guess so, to where your attendance gets marked. In next meeting they will test your communication skills. Okay, so there they will ask you to speak on something on any topic. They'll ask you to pronounce certain words. Okay, and then if you can because you will be definitely, if you are getting selected for a night shift duty, then you will definitely be dealing with US clients. So you must know the correct pronunciation of the words. Your English should be good. Okay, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत प्रोफिशिएंट हूँ इंग्लिश में, बट अच्छी होनी चाहिए. आप वर्ड्स आपको अच्छे से प्रोनाउंस करने आने चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि कोई भी वो टॉपिक ले लेंगे और अगर वो देख रहे हैं कि आप उस टॉपिक को अच्छे से बोल रहे हो, तो उसके बाद वो आपसे कुछ और क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किया था, वो मुझसे पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, तो वो मैंने बताया. उसके बाद उनको मेरा कम्युनिकेशन अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन लखनऊ, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ. तो मैंने उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दिया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि मैं बेटर परफॉर्म कर रही हूँ, देन थर्ड स्टेप उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स दिए चैट बॉक्स में कि आप ये प्रोनाउंस करके बताइए. तो मैंने वो वर्ड्स प्रोनाउंस किए. ओके, सो वहाँ से जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तब आप जाते हो थर्ड मीटिंग में. और ये थर्ड मीटिंग जो होती है, ये आपके मेन HR इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए होती है. यहाँ पे आपको जो सर हैं या मैम हैं, वो बताते हैं कि आपको कैसे आंसर करना है HR को, हाउ यू हैव टू डील विद HR. और वहाँ पे ही जो मुझे टिप्स मिली, डेट वर रियली बेस्ट. एंड अभी तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं ना, मैंने उन्हीं टिप्स को फॉलो किया है और मैं सारे इंटरव्यू में सेलेक्ट हुई हूँ. दैट्स ट्रू. सो या अब मैं इसके बाद जब ये आप वो बता देंगे आपको कि आपको कैसे डील करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको फॉर्मल्स पहनने होंगे, उसके बाद आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, योर वॉइस शुड बी क्लियर, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा बहुत आपका इंप्रेशन ख़राब करता है. ओके,
सो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बताया कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बार बार ये चीज़ें रिपीट की कि अपने जॉब प्रोफाइल, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से आप समझिए, क्योंकि उसी के अराउंड ही आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ओके, तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है हर इंटरव्यू के लिए, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो TCS का इंटरव्यू, चाहे वो जेनपैक्ट का इंटरव्यू, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू। ओके, सो देन द लास्ट प्रोसीजर इज द इंटरव्यू राउंड, द HR इंटरव्यू। तो मेरे केस में 2 फीमेल HRs थी एंड अकेले मैं थी इंटरव्यू में। आप अकेले रहते हो और कोई कैंडिडेट नहीं रहता है, ठीक है। तो लगभग 20 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला। सो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन मोड ओनली। हम लोग को इन पर्सन इंटरव्यू नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछे, जैसे कि स्पेशली सबसे पहले तो मेनली यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन सारे क्वेश्चन दैट व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, व्हाई यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यू आर अ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, व्हाई कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ओके, तो मैंने, और हाँ, मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो मैंने सारे वो आंसर किए। उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई एंड आई हैव गॉट द ऑफर लेटर। सो ये था आपकी प्रोसीजर। तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए प्रोसीजर के, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई फॉलोड दैट गॉट मी अ जॉब। ओके, तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ 4 टिप्स की बात करूँगी जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, प्रिपेयर बिफोर हैंड। आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है आपका इंटरव्यू है, प्लीज स्टडी द जॉब प्रोफाइल, प्लीज स्टडी द जॉब प्रोफाइल। आई एम रिपीटिंग, प्लीज नो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वो कंपनी क्या काम करती है या आप क्या काम करने वाले हो, आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। पहले तो मैंने ये देखा कि कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने देखा, ChatGPT के थ्रू मैंने उनको रीड किया, मैंने देखा कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ये मैं बोल सकती हूँ। तो मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि इंटरव्यू होने के हाफ एन आवर पहले ही मैंने प्रिपरेशन कर ली। सेकेंड टिप इज दैट नो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता है तो आप कैसे आंसर करोगे। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि टेल मी दैट हाउ यू विल हैंडल एंग्री कस्टमर। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कस्टमर हैंडल करना है एंड एट व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर हैंडल करने हैं, तो आप कैसे बता पाओगे, है ना। सो यू मस्ट नो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, थर्ड टिप इज दैट स्टडी द जॉब। सो यू मस्ट नो द जॉब, कि वो एक्चुअली जॉब है क्या, आपको क्या काम करना है। देखो, सारे टिप्स इंटर रिलेटेड हैं, बट मैंने इनको थोड़ा बहुत पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छे से जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें सब कुछ पता होता है। अगर आपको उसमें नहीं भी दी है इन्फॉर्मेशन, तो आप गूगल कर लो, ChatGPT का यूज़ कर लो कि इस कंपनी में इस प्रोफाइल पे क्या काम होता है, ठीक है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, आप ये सब पता कर लो। ओके, देन द लास्ट एंड फाइनल टिप इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। सबसे पहली चीज़ ये आपको अगर मतलब कि जैसे आप खुद को समझिए कि अगर आप खुद एक कंपनी हो, तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आप जॉब बनाए हो वो आपकी सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा हो, जो आपकी नीड है वो उसको फुलफिल कर रहा हो। बस आपको उसी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है कंपनी की। सो मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी जो आपसे डिमांड कर रही है, इंटरव्यू में आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आंसर करिए। जैसे मुझसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने हर क्वेश्चन में यही बताया दैट आई नो आई कैन हैंडल कस्टमर्स वेल, आई नो दैट आई कैन कम्युनिकेट वेल, आई नो आई कैन काम द एंग्री कस्टमर, आई कैन हैंडल हिम। मैंने हर क्वेश्चन में बताया कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही यही थी कि उनको पता होना चाहिए कि क्या ये पर्सन हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। एंड द
यू नो द गोल्डन टिप इज दैट, द फिफ्थ टिप, आपको नीड हो कंपनी की, भले ही आपको नीड हो जॉब की, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको कंपनी को आपकी नीड फील करानी है। आपको इतना बेस्ट इंटरव्यू देना है अपना कि कंपनी को लगे कि अगर मैंने इस पर्सन को हायर नहीं किया तो शायद हम एक केपेबल एम्प्लॉय को लूज कर दें, वी विल लूज देम। ठीक है, तो आप इतना अच्छा इंटरव्यू दीजिए, आप अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को इतना अच्छा कर लीजिए, इतना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख लीजिए कि कंपनी को लगे कि हाँ, दिस इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब रोल। क्रिएट योर नीड फॉर द कंपनी। बहुत जगह अप्लाई करते होगे जॉब्स में, बट ये इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप डेफिनेटली उस जॉब को ले सकते हो, डेफिनेटली। ये मेरी टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैंने सेम टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ किया है और मैंने बहुत सी कंपनीज की इंटरव्यू क्रैक किए। या सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो लाइक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैंने अभी तक ऐसी वीडियो बनाई नहीं, मैंने सारी वीडियोज़ में वॉइस ओवर ही दिया है। And I was very shy and like how I would sound, how I would look, will I be confident enough or not, but I did it guys. So please support me, like, share, subscribe to my channel, and I'll be telling you more interview tips and tricks. It's not end for me. I'll grow more, I'll join greater opportunities, I'll be growing more, and I'll be sharing you more tips and tricks. I'll be sharing you about my life, what I'm doing, what I'll be doing. So yeah, please stay tuned, please subscribe to my channel. Do subscribe to my channel, please.